Hello everyone, welcome to Farmer Minds YouTube channel. We are here with another video of Human Anatomy and Physiology PYQ question series. So in this video, we will discuss the 25 questions, previous year questions of Human Anatomy and Physiology, जो GPAT एग्ज़ाम में आपके आ चुके हैं और हम देखेंगे with explanations. ठीक है. Let's come to the first question, that is zona fasciculate of supraadrenal gland produces which of the following? Options are mineralocorticoids, glucocorticoids, sex hormones, and adrenaline. So, what can be the right option for this question? Zona fasciculate of supraadrenal gland produces. Zona fasciculate is a layer of supraadrenal gland that produces. So, answer देख लेते हैं. The answer is glucocorticoids, that is B option is the right answer. Glucocorticoids. So zona fasciculata of supraadrenal gland produces glucocorticoids. So coming to the explanation part, the adrenal gland is comprised of three main zones. First is zona glomerulosa, second is zona fasciculata, and the third is zona reticularis. Each zone is responsible for producing different hormones. अगर हम बात करें जोना ग्लोमेरुलोसा की, तो दिस रीजन प्रोड्यूसेस द मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स. ये रीजन जो है हमारा मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स को प्रोड्यूस करता है. प्राइमरली एल्डोस्टेरोन इसमें आता है, विच रेगुलेट्स द इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर बैलेंस इन द बॉडी. जो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है रास सिस्टम के अंदर, जो एल्डोस्टेरोन सोडियम एंड वाटर की रिटेंशन कराता है. सेकेंड लेयर की अगर हम बात करें जोना फेसिकुलेटा की, तो दिस मिडल लेयर प्रोड्यूसेस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, which is our correct answer for this question. So primarily इसको जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के अंदर कॉर्टिसोल आ जाता है, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग मेटाबॉलिज्म, इम्यून रिस्पॉन्स एंड स्ट्रेस रिस्पॉन्स. कॉर्टिसोल का यही होता है मेन फंक्शन कि वो स्ट्रेस रिस्पॉन्स एज वेल एज द मेटाबॉलिज्म में उसका मेजर रोल होता है. थर्ड लेयर की बात करें, दैट इज जोना रेटिकुलरिस. दिस इनर मोस्ट लेयर प्रोड्यूसेस स्मॉल अमाउंट ऑफ सेक्स हॉर्मोन्स, primarily androgens, which are precursor molecules for estrogen and testosterone. Therefore, the correct answer should be glucocorticoids. Coming to the next question, that is question number 2. Question number 2 is asking mean arterial जो pressure होता है, what do we understand by the mean arterial pressure? Option A is systolic pressure minus diastolic pressure. Option B is diastolic pressure plus diastolic pressure divided by 2. C is diastolic pressure plus 1 by 3 into pulse pressure. And D option is stroke volume into the heart rate. So इनमें से better option कौन सा है? Right, what is the right option for this question? Mean arterial pressure, and we will discuss this question with the explanation also. So coming to the answer, that is option C, that is diastolic pressure plus 1 by 3 into pulse pressure. So option C is the right answer. Coming to the explanation part, that is mean arterial pressure map is a measure used to assess the average pressure in a patient arteries over one cardiac cycle. एक कार्डियक साइकिल में जो एवरेज प्रेशर जनरेट होता है पेशेंट की आर्टरीज में ओवर वन कार्डियक साइकिल, उसको मेजर करने के लिए हम मीन आर्टीरियल प्रेशर यूज़ करते हैं. सो इट इज़ कैलकुलेटेड एज द एवरेज प्रेशर इन द आर्टरीज ड्यूरिंग द एंटायर कार्डियक साइकिल. एंटायर कार्डियक साइकिल के अंदर एवरेज प्रेशर क्या होता है आर्टरीज के अंदर? इट इज़ पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट बिकॉज ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट थ्रू आउट द कार्डियक साइकिल ड्यू टू पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट. So map is calculated using the following formula, like map equal 2 into diastolic pressure plus systolic pressure divided by 3.
सो डायस्टोलिक प्रेशर हमें पता है कि इज द प्रेशर ऑफ द आर्टरीज व्हेन द हार्ट इज रिलैक्स। जब हार्ट जो है हमारा रिलैक्स मोड में होता है तो उसको हम बोलते हैं डायस्टोल, या फिर उस दौरान जो प्रेशर जनरेट होता है उसको हम बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर की बात करें तो जो प्रेशर इन द आर्टरीज जो जनरेट होती है ब्लड फ्लो के द्वारा व्हेन हार्ट इन कॉन्ट्रैक्टिंग मोड और ड्यूरिंग सिस्टोल, जब जो हमारे कार्डियक मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्शन में होते हैं। और अगर यहाँ पे रीज़न की बात की, द रीज़न फॉर मल्टीप्लाइंग द डायस्टोलिक प्रेशर बाय 2 is that the diastole lasts longer than the systole in a cardiac cycle, so it contributes more to the overall mean arterial pressure. Coming to the next question, that is question number 3. Formation of active 125 OH2D3 occurs in which organ? Option A is skin, option B is kidney, option C is liver, and option D is gut. So which is the right option for this question? So अगर हम आंसर देखें that is kidney. So जो फॉर्मेशन होती है एक्टिव 125 OH2D3 वो किडनी में होती है। So right answer is B. एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। The formation of active 125 The formation of active 125 dihydroxy vitamin D3, that is also known as calcitriol, primarily occurs in the kidney. जो बेसिकली ये किडनी में फॉर्म होता है। अगर इसका स्टेप वाइज अगर हम इसका देखें प्रोसेस, दैट इज फर्स्ट स्टेप विटामिन D3 एब्जॉर्प्शन। द प्रोसेस बिगिंस विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन D फ्रॉम डाइटरी सोर्सेज और थ्रू सिंथेसिस इन द स्किन अपॉन एक्सपोजर टू सनलाइट। सबसे पहले विटामिन D जो है उसकी एब्जॉर्प्शन होती है डाइटरी सोर्सेज के द्वारा और स्किन में इसका जब थ्रू सिंथेसिस इन द स्किन अपॉन एक्सपोजर टू सनलाइट, जब भी सनलाइट के एक्सपोजर में विटामिन जो D है उसकी सिंथेसिस भी होती है एज वेल एज द एब्जॉर्प्शन आफ्टर दैट। द प्रिकर्सर फॉर्म ऑफ विटामिन D नोन एज विटामिन D3, दैट इज कोलीकैल्सिफेरॉल। विटामिन D3 को हम बोलते हैं कोलीकैल्सिफेरॉल, इज कन्वर्टेड टू 25 डाईहाइड्रोक्सी विटामिन D3, जिसको जो फॉर्मूला जो अभी हमने देखा दैट इज 25 OH-D3 इन द लिवर। सेकेंड स्टेप की बात करें तो कन्वर्जन इन द किडनीज, जो विटामिन D जो फॉर्म हुआ है उसकी कन्वर्जन होती है किडनी में इन द फॉर्म ऑफ द 25 OH-D3 फॉर्म्ड इन द लिवर, then undergoes a further hydroxylation reaction in the kidney mediated by the enzymes। यहाँ पे एंजाइम किसका रोल होता है? 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज का। तो 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज जो एंजाइम है ये दिस कन्वर्ट्स 25 OH-D3 into एक्टिव फॉर्म दैट इज 125 डाईहाइड्रोक्सी विटामिन D3। जो अपर ये जो हमने फॉर्मूला देखा था कि 125 OH2D3 ये जो 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज है ये कन्वर्ट करता है, ठीक है, इन द लिवर, फ्रॉम लिवर टू इन द किडनी, जिसको हम बोलते हैं कैल्सीट्रायोल। थर्ड प्रोसेस की बात करें दैट इज रेगुलेशन। तो सिंथेसिस ऑफ 125 OH2D3 इज टाइटली रेगुलेटेड बाय द वेरियस फैक्टर्स इंक्लूडिंग पैराथायरॉयड हार्मोन, यहाँ पे PTH का भी मेजर रोल होता है एज वेल एज कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल इन द बॉडी। तो मोस्टली जो कैल्सीट्रायोल है ये हमारे पैराथायरॉयड हार्मोन के साथ मिलके कैल्शियम, फॉस्फेट और अदर मिनरल्स की जो है रेगुलेशन करवाता है, होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है। So parathyroid hormone stimulates the activity of 1 alpha hydroxylase leading to increased production of active vitamin D। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। सो व्हाट डज इट मीन्स दैट अ सेल इज पॉलीप्लॉइडी? ये हमारा जेनेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। पॉलीप्लॉइडी ये जो टर्म है ये क्या इंडिकेट करता है? ऑप्शन ए इज दैट इज कंटेन मोर देन 2 कॉपीज ऑफ 1 और मोर few of its chromosomes। Option B is that is contain more than 2 copies of a full set of homologous chromosomes, and option C is that is contain more than 2 copies of its sex chromosomes। Option D is
that is contain more than 2 copies of its autosomal chromosome. So what do we understand by the polyploidy? या तो वो क्रोमोसोम से रिलेटेड है, ठीक है, या फिर वो रिसेसिव या फिर ऑटोसोमल क्रोमोसोम से रिलेटेड है, ठीक है. तो आंसर देख लेते हैं इसका. राइट आंसर इज दैट इज कंटेन मोर देन 2 कॉपीज ऑफ ए फुल सेट ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स. तो 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं होमोलोगस, होमोलोगस मीन्स द डोमिनेंट फैक्टर, डोमिनेंट फैक्टर्स यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है. अगर इसका एक्सप्रेशन हम देखें तो polyploidy refers to a condition in which a cell or organism contains more than 2 paired homologous set of chromosomes. Normally, most organism included humans, मतलब polyploidy कंडीशन को रेफर करते हैं which a cell or organism contain more than 2 paired homologous set of chromosome, ठीक है. Most organism including humans are diploid, meaning they have 2 sets of chromosomes, one inherited from each parent, ठीक है. लाइक अगर हम XX की बात करें या XY की बात करें तो ये डिप्लॉयड है, ठीक है. However, in polyploidy, cell can have 3 or more complete sets of chromosomes. Like यहाँ पे आपका XXX आ सकता है, यहाँ पे आपका XYY आ सकता है, या फिर XXY आ सकता है. So this is called the polyploidy. Poly मतलब multiple, more than 2, और ploidy refers to the chromosomal number. So there are different type of polyploidy. अगर हम इनके types की बात करें, then first is triploidy and second is tetraploidy. तो triploidy इसमें क्या होता है कि this occurs when a cell or organism has 3 sets of chromosomes instead of the usual 2. For example, नॉर्मल अगर हम बात करें तो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमंस में, दैट इज 23 पेयर्स. अ ट्राइप्लॉइड सेल वुड हैव 69 क्रोमोसोम्स. अगर हम 23 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, दैट इज अगर हम उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 3 is 9 एंड 3 2 is 6, तो ऑलमोस्ट ये हो गया हमारा 69. यही हो गए हमारे 69 क्रोमोसोम्स, यानी कि 23 पेयर्स जो है यहाँ पे 23 पेयर्स ना होके वो ट्राइप्लॉइडी में आ जाता है, ठीक है. तो पेयर्स को 23 पेयर्स को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 69 हो गए. टेट्राप्लॉइडी की अगर हम बात करें, टेट्राप्लॉइडी तो अगर हम 23 को ही हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें, दैट इज 92, ठीक है. तो देयर आर यहाँ पे कितने होते हैं, 4 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, और मेनली ह्यूमंस में कितने होते हैं, 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, और ट्राइप्लॉइडी में 3 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, और टेट्राप्लॉइडी में हमारे 4 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है. तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. विच अमंग द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट हिप बोन. तो ये हमारा स्केलेटल सिस्टम से क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट हिप बोन. तो इसमें हिप बोन की भी एक स्पेसिफिक मतलब पार्ट दिया गया है जो हमें याद करना है. ऑप्शन जो ए है दैट इज इस्चियम, ऑप्शन बी इज इलियम, ऑप्शन सी इज फीमर, एंड ऑप्शन डी इज कैलकेनियस. तो इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन हो सकता है जो लार्जेस्ट हिप बोन को शो करता है. विच वन अमंग द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट हिप बोन. जो हमारे जो बेसिक हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड है उससे कनेक्टेड होता है, एज वी नो. सो आंसर देख लेते हैं, दैट इज ऑप्शन बी इज इलियम. ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर. So coming to the explanation part, among the options provided, the largest hip bone is the ilium. The hip bone, also known as the innominate or pelvic bone, is made up of 3 fused bones. यहाँ पे 3 fused bones होते हैं hip bone के अंदर. फर्स्ट है हमारा ilium, देन आ जाता है हमारा ischium एंड pubis. ये 3 बोन्स मिलके पूरे हिप बोन को फॉर्म करते हैं, ठीक है. ऑफ दीज 3 द ilium इज द लार्जेस्ट. तो इन तीनों में से जो ilium पार्ट है, ilium, वो हमारा लार्जेस्ट होता है एंड फॉर्म्स द अपर एंड widest part of the hip bone. It contributes significantly to the shape of the hip and provides attachment for points for various muscles.
अटैचमेंट पॉइंट्स भी ये प्रोवाइड करता है वेरियस मसल्स के लिए, इंक्लूडिंग दोज ऑफ एब्डोमिनल जो बोन्स, मतलब एब्डोमिनल जो मसल्स होते हैं हमारे उनको, बैक मसल्स एंड हिप के जो मसल्स होते हैं, ठीक है। और ये हमारे सपोर्ट भी करता है वेट ऑफ द बॉडी व्हेन स्टैंडिंग एंड वॉकिंग, ठीक है। तो इलियम का ये काम है, और इलियम इज द लार्जेस्ट बोन पार्ट ऑफ द हिप बोन, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। द लोकेशन ऑफ द ब्लड ब्रेन बैरियर इज कंसिडर्ड टू बी। तो हमने CNS में पढ़ा है, ठीक है, नर्वस सिस्टम में ब्लड ब्रेन बैरियर कैसे फॉर्म होता है और उसकी लोकेशन कहाँ होती है, किसके साथ होती है। ऑप्शन ए की बात कर रहे हैं, एट द लेवल ऑफ द ब्रेन कैपिलरीज। ऑप्शन बी इज एट द लेवल ऑफ ग्लाया, जो हमारे ग्लायल सेल्स होते हैं। ऑप्शन सी इज एट द लेवल ऑफ न्यूरॉन्स। ऑप्शन डी इज एट द लेवल ऑफ डेंड्राइट्स। सो डेंड्राइट्स इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ए न्यूरॉन्स, ठीक है। एंड जो ग्लायल सेल्स होते हैं वो न्यूरोनल जो सेल्स होते हैं उनसे अलग होते हैं, दैट आर द सपोर्टिंग जो सेल्स होते हैं ब्रेन के, ठीक है। तो अगर हम राइट आंसर की बात करें, दैट इज ऑप्शन ए, बिकॉज ब्लड ब्रेन बैरियर है, तो ब्लड कहाँ फ्लो हो रहा है, हमारी ब्रेन कैपिलरीज में, ब्रेन की जो आर्टरीज है, आर्ट्रियोल्स है उसके अंदर। सो जो इसकी मेन लोकेशन होगी एट द लेवल ऑफ द ब्रेन कैपिलरीज, बिकॉज ब्रेन कैपिलरीज के साथ ही मिलके जो ग्लायल सेल्स है एज वेल एज द न्यूरोनल सेल्स ये अटैच होके ब्लड ब्रेन बैरियर की फॉर्मेशन करा रही है, as well as with the help of ependymal cells as well as the choroid plexus, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। So nerve impulses from cochlea arrive first in which region of the brain? जो नर्व इम्पल्सेस जो कॉकलिया से अराइव होते हैं, लाइक जो हमने कुछ भी साउंड हमने सुना वो जाके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे स्ट्राइक करता है, वहाँ से फ्रीक्वेंसी जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी वो जनरेट होती है, और वो मैलस इनकस एंड स्टेप्स के थ्रू वो जाती है हमारे कॉकलिया में, जहाँ पे हमारे इंडोलिम्फ और पेरिलिम्फ फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर वहाँ से जो नर्व इम्पल्स जनरेट होती है वो कहाँ जाती है, ब्रेन के कौन से पार्ट में जाती है। नर्व इम्पल्स फ्रॉम कॉकलिया अराइव फर्स्ट इन विच रीजन ऑफ द ब्रेन, ठीक है। ऑप्शन ए है हमारा ऑडिटरी कॉर्टेक्स, ऑप्शन बी इज थैलमस, ऑप्शन सी इज मेडुला ऑब्लिंगाटा, ऑप्शन डी इज इंफीरियर कॉलिकुलस। तो इनमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जहाँ पे जो नर्व इम्पल्स है, जो सिग्नल जाते हैं, ऑडिटरी सिग्नल्स जाते हैं। सबसे पहले ऑडिटरी कॉर्टेक्स से कंफ्यूज मत होना। थैलमस में बेसिकली ये हमारा मेन रेगुलेटरी जो बॉडी है ब्रेन का, मेडुला ऑब्लिंगाटा वेरियस फंक्शन परफॉर्म करता है, इंफीरियर जो कॉलिकुलस है वो कनेक्ट करता है ब्रेन के डिफरेंट पार्ट को, ठीक है। तो आंसर देख लेते हैं, दैट इज मेडुला ऑब्लिंगाटा। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। अगर हम बात करें एक्सप्लेनेशन की, तो nerve impulses from the cochlea, which is the part of the inner ear responsible for hearing, first arrive in the brainstem. brainstem मतलब brainstem का ही part है हमारा medulla oblongata, pons as well as the midbrain. तो specifically they enter the brainstem at a region called the cochlear nucleus, जो हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है कॉक्लियर न्यूक्लियस, हमारा मेडुला ओब्लिंगाटा के अपर पोर्शन। This is the initial processing center for the auditory information in the central nervous system. From there, the auditory signals are relayed to higher auditory processing centers in the brain, जो आगे जाके फिर इसको प्रोसेस करता है, जो हमारे ऑडिटरी कॉर्टेक्स है, जहाँ पे सिग्नल को रिसीव होना है और आइडेंटिफाई होना है, सच एज द इंफीरियर कॉलिकुलस इन द मिड ब्रेन, जो हमारे मिड ब्रेन को कनेक्ट कर रहा है हमारे थैलमस के साथ, उसको हम बोल रहे हैं इंफीरियर कॉलिकुलस। द मेडिकल geniculate nucleus in the thalamus and eventually to the auditory cortex in the temporal lobes of the brain where sound perception. तो auditory cortex as well as the thalamus ये हमारा डिसाइड करता है, रिकॉग्नाइज करता है, आइडेंटिफाई करता है, और एज वेल एज विद द हेल्प ऑफ टेम्पोरल, जो हमारा टेम्पोरल लोब में ही प्रेजेंट होते हैं, तो ये साउंड परसेप्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, रिकग्नाइज करते हैं एंड इंटरप्रिटेट करते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि इंक्रीज नंबर ऑफ नॉर्मल माइटोसिस, ये हमारा सेल से क्वेश्चन है, ठीक है। तो सेल साइकिल से बेसिकली क्वेश्चन है। तो इंक्रीज नंबर ऑफ नॉर्मल माइटोसिस मे बी प्रेजेंट इन द फॉलोइंग टिश्यू एक्सेप्ट, यहाँ पे
आपके 3 ऑप्शंस करेक्ट हैं, एक ऑप्शन जो है आपका रॉन्ग है, जो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। तो अगर इंक्रीज नंबर ऑफ नॉर्मल माइटोसिस की बात करें, मे बी प्रेजेंट इन फॉलोइंग टिश्यू। कौन कौन से टिश्यू में सबसे ज़्यादा इंक्रीज नंबर ऑफ माइटोसिस देखने को मिलती है? ऑप्शन ए इज बोन मैरो सेल्स, ऑप्शन बी इज नेल्स, ऑप्शन सी इज हेपेटोसाइट्स, ऑप्शन डी इज इंटेस्टाइनल सेल्स। इनमें से कौन सा ऐसा पार्ट है बॉडी का जिसमें जो नॉर्मल माइटो इंक्रीज नंबर ऑफ नॉर्मल माइटोसिस है वो नहीं होता, ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर टिश्यू। ठीक है, तो आंसर देख लेते हैं इसका, दैट इज नेल्स। तो इंक्रीज नंबर ऑफ नॉर्मल माइटोसिस जो हमारा नॉर्मल जो बोन बैरो सेल्स है वहाँ पे होता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आरबीसी की फॉर्मेशन होती है। हिपेटोसाइट्स की बात करें तो यहाँ पे वेरियस जो प्रोटीन्स एज वेल एज द वेरियस जो प्रोटीन्स के अलावा हार्मोन्स एंड जो एंजाइम्स की प्रोसेसिंग होती है यहाँ पे, वो यहाँ पे होती रहती है, तो यहाँ पे माइटोसिस की प्रोसेस इंक्रीज होगी। इंटेस्टाइनल सेल्स की बात करें तो वहाँ पे भी माइटोसिस की प्रोसेस इंक्रीज होती है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन 9 पे। तो प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स आर डिजाइन टू डिटेक्ट। प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स आती हैं लेडीज़ के लिए, तो वो किसको डिटेक्ट करने के लिए डिज़ाइन होती है, कौन से हार्मोनल चेंजेस के लिए? तो ऑप्शन ए इज ईस्ट्रोजन, ऑप्शन बी इज ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन दैट इज HCG, ठीक है, ऑप्शन सी इज फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन दैट इज FSH, एंड ऑप्शन डी इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन दैट इज LH, जो LH सर्ज जिसे हम बोलते हैं ना ओव्यूलेशन साइकिल में, ठीक है। तो ओव्यूलेशन साइकिल हमने पढ़ा हुआ, तो इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन हो सकता है? ईस्ट्रोजन, HCG, FSH और LH। अगर राइट आंसर की बात करें दैट इज HCG। तो HCG, तो जो प्रेगनेंसी किट है वो HCG को डिटेक्ट करते हैं, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन को, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगर इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स आर डिजाइन टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन HCG हार्मोन इन वुमेन्स। वुमेन्स जो यूरिन का जो ड्रॉप है वो टेस्ट किट पे जब ड्रॉप को पुट करती है, इंसर्ट करती है, तो वो उसके डायरेक्टली उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव जो रेड और जो ब्लू लाइन होती है ऐसे शो हो जाती है, ठीक है, जिससे पता चलता है कि प्रेगनेंसी है कि नहीं, और ये ब्लड टेस्ट के थ्रू भी पता चलता है। तो HCG इज प्रोड्यूस्ड बाय द सेल दैट विल इवेंचुअली फॉर्म द प्लेसेंटा आफ्टर इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड एग इन द यूट्रस। तो HCG कैसे प्रोड्यूस होता है? HCG इज प्रोड्यूस्ड बाय द सेल दैट विल इवेंचुअली फॉर्म द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या है कि जो मदर का जो वॉर्म है, जब एक एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है, उसके बाद जब प्लेसेंटा की फॉर्मेशन हो तो प्लेसेंटा कनेक्ट करता है जो बेबी है उसको मदर के जो ऑर्गन पार्ट है उसके साथ कनेक्ट करता है, ताकि जो न्यूट्रिएंट्स और जो ब्लड सप्लाई है वो हो सके, ठीक है, बेबी को। तो इम्प्लांटेशन, जब भाई फर्टिलाइज्ड एग की इम्प्लांटेशन होती है और आफ्टर टू विदिन 2 वीक्स और 3 वीक्स इम्प्लांटेशन होने के बाद प्लेसेंटा की फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाती है। तो HCG के थ्रू ये पता चल जाता है, HCG के लेवल से, HCG के प्रेजेंस से, तो इट्स प्रेजेंस इन द बॉडी टिपिकली इंडिकेट्स द प्रेगनेंसी दैट लेडी इज प्रेग्नेंट और नॉट। Coming to the next question, it is question number 10. The cells which secrete male sex hormone testosterone are, काफ़ी easy question है। कौन से ऐसे सेल्स हैं जो सिक्रेट करते हैं मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज क्रिप्ट ऑफ लिबर्कन्स, ऑप्शन बी इज लाइडिक सेल्स, ऑप्शन सी इज सर्टोली सेल्स, ऑप्शन डी इज इस्थमस। इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन है? क्रिप्ट्स ऑफ लिबर्कन, लेडिक सेल, सर्टोली सेल्स या इस्थमस। तो अगर राइट ऑप्शन की बात करें दैट इज लेडिक सेल। लीडिक जो सेल्स हैं वो सिक्रेट करते हैं मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। अगर इसका एक्सप्लेनेशन की बात करें तो द सेल्स दैट सिक्रेट द मेल सेक्स हार्मोन्स आर प्राइमरली फाउंड इन द टेस्टिस, बिकॉज लीडिक सेल्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं टेस्टिस में, तो स्पेसिफिकली इन द इंटरस्टिशियल टिश्यू ऑल्सो नोन एज लीडिक सेल्स, ठीक है, located between the seminiferous tubules. So testosterone production is regulated by the hypothalamus
पिट्यूटरी गोनेडल एक्सिस, जो HPG एक्सिस है, इसके थ्रू टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन रेगुलेट होती है। तो द हाइपोथैलेमस सिक्रीट्स गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो हाइपोथैलेमस सबसे पहले क्या रिलीज करेगा, GnRH, ठीक है, जो जाके स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, और पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या रिलीज होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एंड FSH जो हमारा है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। तो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का ही रोल होता है कि वो आगे जाके फिर फर्दर स्टिमुलेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस को। तो जो स्पर्म सेल्स होते हैं, जो इनिशियल स्पर्म सेल्स होते हैं, उनको मैच्योर करने का यही काम करता है FSH मेनली, ठीक है, मेल्स के अंदर। तो LH इन पर्टिकुलर एक्ट्स ऑन लीडिंग सेल्स। जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है हमारा, वो लीडिंग सेल्स पे एक्ट करता है, ठीक है, इन द टेस्टिस, और ट्रिगर करता है प्रोडक्शन एंड रिलीज ऑफ टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो LH का रोल होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का मेन जो रोल होता है वो होता है हमारे जो टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन में रिलीज के अंदर, और जो FSH जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, उसका रोल होता है मेनली स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन के हम कुछ फंक्शंस अगर हम बात करें फंक्शंस की, तो टेस्टोस्टेरोन प्लेज नंबरस रोल्स इन द मेल बॉडी इंक्लूडिंग डेवलपमेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट। तो फीटल डेवलपमेंट जब भी हो रहा है तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की फॉर्मेशन और डेवलपमेंट के लिए टेस्टोस्टेरोन इज रिस्पॉन्सिबल। सेकेंड इज स्टिमुलेटिंग द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में भी इसका रोल होता है इन द टेस्टिस। प्रमोटिंग द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आफ्टर लाइक 15 और 16 ईयर्स। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स मेल्स में डेवलप करने का भी काम होता है मेनली टेस्टोस्टेरोन का, लाइक मसल डेवलपमेंट, ठीक है, प्यूबिक हेयर्स, चेस्ट हेयर्स, जो बियर्ड्स, ठीक है, इन सब ड्यूरिंग प्यूबर्टी विच इज़ अ फेशियल एंड बॉडी हेयर ग्रोथ, deepening of the voice and increased muscle mass. Fourth is regulating libido or sex drive or erectile functioning, ठीक है। Fifth is influencing mood, energy levels and cognitive functions. Coming to the next question, question number 11. So यहाँ पे मेन है endocrine से क्वेश्चन है, that is insulin and thyroxine reaches an organ cell at the same time, ठीक है। इंसुलिन और थायरोक्सिन एक ही टाइम पे ऑर्गन सेल्स पे पहुंचते हैं। थायरोक्सिन कॉज एन इफेक्ट ऑन द ऑर्गन बट इंसुलिन डज नॉट, बिकॉज ऑप्शन क्या है कि थायरोक्सिन डायरेक्ट इफेक्ट शो करता है ऑर्गन्स पे, ठीक है, बट इंसुलिन उस टाइम पे नहीं करता, डज नॉट। व्हाट इज द रीजन? द ऑप्शन ए इज द टारगेट सेल इन द ऑर्गन हैज अप रेगुलेटेड फॉर थायरोक्सिन, द ऑर्गन सेल हैव रिसेप्टर्स फॉर थायरोक्सिन बट नो रिसेप्टर्स फॉर इंसुलिन, the thyroxine is a lipid soluble hormone and insulin is water soluble. Option D is thyroxine is local hormone and insulin is a circulating hormone, ठीक है। ये चार ऑप्शन है आपके पास, इनमें से क्या हो सकता है? सो अगर हम आंसर देखें तो द ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, द ऑर्गन सेल्स हैव द रिसेप्टर फॉर थायरोक्सिन, बिकॉज थायरोक्सिन अपना डायरेक्ट इफेक्ट क्यों दे रहा है, क्योंकि वहाँ पे थायरोक्सिन के जो रिसेप्टर्स हैं वो डायरेक्टली प्रेजेंट है ऑर्गन के ऊपर, बट इंसुलिन अपना इफेक्ट क्यों नहीं शो कर पा रहा, बिकॉज देर इज नो रिसेप्टर प्रेजेंट फॉर द इंसुलिन बाइंडिंग ऑन द ऑर्गन सेल, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, द ऑर्गन सेल्स हैव रिसेप्टर्स फॉर थायरोक्सिन ओनली, थायरोक्सिन, ठीक है, बट नो रिसेप्टर्स फॉर द इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12. So which of the following are thymus hormone that promote the maturation of T lymphocyte? इनमें से कौन सा थाइमस हार्मोन है जो T lymphocytes की मैच्योरेशन करवाता है? जो है अगर इसमें ऑप्शंस की बात करें, P थाइमोसिन, Q थाइमिक ह्यूमरल फैक्टर, R थाइमिक फैक्टर, S जो है हमारा इंटरल्यूकिन्स है। ऑप्शन ए इज P, Q एंड R, दैट इज थाइमोसिन, थाइमिक ह्यूमरल फैक्टर एंड थाइमिक फैक्टर। बी ऑप्शन में है P एंड Q, दैट इज थाइमोसिन और थाइमिक ह्यूमरल फैक्टर। सी ऑप्शन बोल रहा है Q एंड R, Q में है थाइमिक ह्यूमरल फैक्टर और R में है हमारा थाइमिक फैक्टर, और डी ऑप्शन बोलता है ओनली एस इंटरल्यूकिन्स। तो इंटरल्यूकिन्स तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, कि इंटरल्यूकिन्स का रोल अलग होता है। तो अगर इसके राइट आंसर की बात करें तो दैट इज P, Q एंड R,
जो ऑप्शन ए है हमारा वो करेक्ट है, जो शो कर रहा है कि बेसिकली थाइमोसिन एज वेल एज जो थाइमिक ह्यूमरल फैक्टर है और जो आर है हमारा थाइमिक फैक्टर, ये तीनों मिलके हमारे टी लिम्फोसाइट की मैच्योरेशन कराते हैं थाइमस के अंदर। ठीक है, क्योंकि थाइमस से ही मेन जो लिम्फोसाइट है वो जनरेट होता है। ठीक है, जो थाइमस से ही टी लिम्फोसाइट मैच्योर होकर निकलता है, बी लिम्फोसाइट बोन बैरो से होता है। ठीक है, ये डिफरेंस होता है लिम्फोसाइट के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट है, जो शो कर रहा है पी क्यू एंड आर। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखिए तो thymosin and thymic factor are hormones secreted by the thymus gland that plays crucial role in the maturation of differentiation of T cells within the thymus. These hormones aid in the development of T cells into functional immune cells capable of recognizing and responding to specific pathogens and antigens. ठीक है, तो ये डिफेंस सिस्टम का पार्ट है टी लिम्फोसाइट, जो टी सेल्स है। ठीक है, इम्यून सिस्टम का पार्ट है और बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म को मेंटेन करता है। तो ऑप्शन क्यू जो है थाइमिक ह्यूमरल फैक्टर इज नॉट अ वेल नोन हार्मोन एसोसिएटेड विद थाइमिक फंक्शन। जो ऑप्शन एस था इंटरल्यूकिन्स, वो सिर्फ इम्यून रेगुलेशन करवाता है एंड टी सेल्स एक्टिवेशन करवाता है। टी सेल्स एक्टिवेशन में उसका रोल होता है इंटरल्यूकिन्स का, और ये थाइमस ग्लैंड के साथ इसका कोई कोरिलेशन नहीं है, और ये सिर्फ इम्यून सेल्स के साथ काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेरिब्रल हेमिस्फीयर इज ट्रू। इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो सेरिब्रल हेमिस्फीयर के रिगार्डिंग ट्रू है। सेरिब्रल हेमिस्फीयर मतलब जो हमारा सेरिब्रम है, ब्रेन का जो सेरिब्रम है, ये जो हमारा सेरिब्रम पार्ट है। ठीक है, तो ये क्योंकि सेरिब्रम के दो हेमिस्फीयर होते हैं, एक राइट हेमिस्फीयर एक लेफ्ट हेमिस्फीयर। ठीक है, तो इसकी अपर मोस्ट पार्ट होता है उसी को बोलते हैं हम सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, सही है। तो ऑप्शन ए इज द राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर आर सिमेट्रिकल। ऑप्शन बी इज दिस द राइट hemisphere more important for spoken and written language. Option C है the left hemisphere is more important for musical and artistic awareness. Option D बोलता है hemisphere lateralization is more pronounced in male than in females. तो अगर इस करेक्ट आंसर की बात करें तो hemisphere lateralization is more pronounced in male than in female। तो इसका जो लेटरलाइजेशन होता है हेमिस्फीयर का मतलब लेफ्ट और राइट और जो लेफ्ट है, ठीक है, तो वो जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर होते हैं वो उनका शेप थोड़ा सा वेरी करता है एज कम्पेयर टू फीमेल्स। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 पे चले तो इन रिस्पेक्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ऑप्शन 1 जो है हमारा वो बोल रहा है द फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल कंसिस्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल फेज, अ प्री ओव्यूलेटरी फेज, ओव्यूलेशन एंड ओव्यूलेटरी फेज। Option 2, during the menstrual phase, small secondary follicles in the ovary begins to enlarge while the uterus is shedding its lining. Option 3 बोल रहा है during the pre-ovulatory phase, a dominant follicle continues to grow and begins to secrete estrogen and inhibin while the uterine lining begins to rebuild. ऑप्शन 4 में क्या बोल रहे हैं कि ओवुलेशन रिजल्ट्स इन द रिजल्ट ऑफ एन ओवम एंड द शेडिंग ऑफ द यूट्रस लाइनिंग टू नरिश एंड सपोर्ट द रिलीज ऑफ ओवम। फिफ्थ में बोल रहा है कि आफ्टर ओवुलेशन अ कॉर्पस लूटियम फॉर्म्स द रप्चर्ड फॉलिकल्स एंड बिगिंस टू सीक्रेट प्रोजेस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन which it will continue to do throughout pregnancy. The egg is fertilized. Option 6 में if pregnancy does not occur then the corpus luteum degenerates into scars or corpus albicans and uterine lining is prepared to be shed again. तो इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। अगर हम क्वेश्चन जो हमारा ऑप्शन 6 है अगर इसकी हम बात करें तो प्रेगनेंसी अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है वो डिजेनरेट हो जाता है। ठीक है, करेक्ट, इनटू स्कार्स नोन एज कॉर्पस एल्बिकन्स, और यूट्राइल लाइनिंग इज प्रिपेयर्ड फॉर शेड अगेन, यूट्राइल लाइनिंग फिर से बननी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन 6 यहाँ पे करेक्ट शो हो रहा है। ठीक है,
तो अगर ऑप्शन ए की बात करें तो द फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल कंसिस्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल फेज, अ प्री ओवुलेटरी फेज, ओवुलेशन एंड जो ओवुलेटरी फेज। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 1 भी करेक्ट है, क्योंकि ये सारे फेज होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल में। ठीक है, तो ऑप्शन 2 जो है, ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल फेज स्मॉल सेकेंडरी फॉलिकल्स इन द ओवरी बिगिंस टू इनलार्ज व्हाइल द यूट्रस इज शेडिंग इट्स लाइट। तो अगर इसके आंसर की बात करें तो जो हमारा ऑप्शन जो ए है, जिसमें 1, 2, 3 एंड 6, तो हमने जो बोला था कि 6 सही है, फर्स्ट भी सही है, और सेकंड ऑप्शन है क्योंकि मेंस्ट्रुअल फेज में सेकेंडरी जो स्मॉल सेकेंडरी फॉलिकल्स बनते हैं ओवेरी के, ठीक है, वो धीरे धीरे लार्ज होते हैं और यूट्रस की जो लाइनिंग होती है वो हाँ, यूट्रस की लाइनिंग वहाँ पे शेड होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑप्शन, ड्यूरिंग द प्री ओवुलेटरी फेज अ डोमिनेंट फॉलिकल कंटिन्यूज टू ग्रो and begins to secrete estrogen and inhibin when the uterine lining begins to rebuild। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड सिक्स्थ ऑप्शन हमारा सही है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द प्रोकैरियोट्स। तो ये है हमारा सेल्स चैप्टर से क्वेश्चन है प्रोकैरियोट्स के बारे में। ऑप्शन ए बोलता है कि न्यूक्लियस इज नॉट बाउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो प्रोकैरियोट्स के रिगार्डिंग ट्रू नहीं है, गलत है? ठीक है, तो ऑप्शन ए, न्यूक्लियस इज नॉट बाउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ऑप्शन बी, सेल वॉल कंटेन्स पेप्टिडोग्लाइकन। ऑप्शन सी इज 80s राइबोसोम्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन साइटोप्लाज्म। और ऑप्शन डी इज इट इज हैप्लॉइड इन नेचर। तो अगर प्रोकैरियोट्स, ईकैरियोट्स की बात करें तो ईकैरियोट्स आर मल्टी सेल्यूलर एंड प्रोकैरियोट्स आर सिंगल सेल्यूलर, मतलब सिंगल सेल जो ऑर्गेनिज्म वो उनमें उनकी बात हो रही है यहाँ पे। सिंगल सेल मतलब जैसे एग्जांपल अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया में जो न्यूक्लियस होता है इज नॉट बाउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, हाँ नहीं होता। ठीक है, सेल वॉल कंटेन्स पेप्टिडोग्लाइकन्स, जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकन कंटेन करता है, तो ये भी ट्रू है। ठीक है, और ऑप्शन डी, इट इज़ हैप्लॉइड इन नेचर, हैप्लॉइड इन नेचर ही होता है। ठीक है, क्योंकि ये बाइनरी फ्यूजन के थ्रू अपना रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, एसेक्सुअल। अगर सी की बात करें, ऑप्शन सी की, तो 80s राइबोसोम्स वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज वहाँ पे बैक्टीरिया के अंदर हमारे 70s राइबोसोम्स होते हैं, 70s राइबोसोम्स। तो ऑप्शन सी इज जो है ये यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट गलत है, यानी कि इट इज़ करेक्ट। ट्रू ऑप्शन, ऑप्शन सी, 80s राइबोसोम्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द साइटोप्लाज्म, विच इज़ नॉट ट्रू, विच इज़ नॉट ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, अबाउट प्रोकैरियोट्स। तो एक्सप्लेनेशन हम देख चुके हैं यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16, तो आइडेंटिफाई द क्लॉटिंग फैक्टर विच इज़ नॉन एज स्टुअर्ट फैक्टर और थ्रोम्बोकाइनेज। इनमें से कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर है जिसको हम बोलते हैं स्टुअर्ट फैक्टर या फिर थ्रोम्बोकाइनेज बोलते हैं? तो ऑप्शन ए है यहाँ पे हमारा क्लॉटिंग फैक्टर जो फोर्थ है, क्लॉटिंग फैक्टर नेक्स्ट इज क्लॉटिंग फैक्टर 8। ऑप्शन सी इज क्लॉटिंग फैक्टर 10। ऑप्शन डी इज क्लॉटिंग फैक्टर 12। तो राइट ऑप्शन इज क्लॉटिंग फैक्टर 10। ठीक है, क्लॉटिंग फैक्टर 10 को भी 10 को हम बोलते हैं स्टुअर्ट फैक्टर या फिर थ्रोम्बोकाइनेज। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगर इसका एक्सप्लेनेशन हम देखें तो इसका एक्सप्लेनेशन है, अगर फैक्टर 10 की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये है हमारा फैक्टर 10, इसको हम बोल रहे हैं स्टुअर्ट पावर फैक्टर, स्टुअर्ट पावर फैक्टर। तो इसका मेमोनिक भी है यहाँ पे कि फ्रेशर पार्टी टुनाइट, कम लेट्स सिंग एंड पर्सनली कॉल सीनियर्स, प्लीज हैव फन। या फिर दूसरा अगर हम मेमोनिक इसका देखें तो फेमस पर्सन तरुण केम लाइक अ स्टार एंड पर्सनली कॉल सीनियर्स, प्लीज हैव फन। ठीक है, तो मिलता जुलता सा मेमोनिक है दोनों का। तो यहाँ पे सारे फैक्टर्स भी प्रेजेंट है और इस मेमोनिक के थ्रू हम इसको याद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। तो विच पार्ट ऑफ द आई इज लाइट सेंसिटिव, या जिसको हम बोलते हैं फोटो सेंसिटिव। आई का कौन सा पार्ट है जो लाइट सेंसिटिव है? ऑप्शन ए की बात करें तो आइरिस, ऑप्शन बी इज स्क्लेरा, ऑप्शन सी इज लेंस एंड ऑप्शन डी इज रेटिना। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो लाइट सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा लाइट सेंसिटिव या फोटो सेंसिटिव होता है? ठीक है, तो करेक्ट जो आपका आंसर है, करेक्ट ऑप्शन है दैट इज रेटिना, आंसर डी
आंसर डी इज करेक्ट ऑप्शन। अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो द पार्ट ऑफ द आई दैट इज लाइट सेंसिटिव और फोटो सेंसिटिव इज द रेटिना। तो रेटिना के जो लेयर्स होते हैं, रेटिना इज अ लेयर ऑफ टिश्यू लोकेटेड एट द बैक ऑफ द आई दैट कंटेन्स द फोटो रिसेप्टर्स। यहाँ पे क्योंकि ये फोटो सेंसिटिव क्यों है, क्योंकि लाइट को डिटेक्ट करता है, तो यहाँ पे फोटो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। फोटो रिसेप्टर सेल्स जिसको जहाँ जिनको हम क्या बोलते हैं, रोड्स एंड कोन्स। रोड्स एंड कोन सेल्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। तो these cells are responsible for converting light into electrical signals that can be interpreted by the brain। तो यही जो है लाइट को जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं रॉड्स एंड कॉन्स, और ताकि वो ब्रेन में जाए और फिर हम उसको उस कलर को हम पहचान सकें। ठीक है, कि कौन कौन सा वो कलर है। अलाउिंग अस टू सी रोड्स आर पर्टिकुलरली सेंसिटिव टू डिम लाइट। जितनी भी डिम लाइट होती है तो उसके सेंसिटिव होता है, उससे सेंसिटिव होता है रोड। एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पेरिफेरल एंड नाइट विजन। नाइट विजन के लिए भी यही रिस्पॉन्सिबल होता है, रोड्स। वाइल कोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर विजन। और कोन्स में हमारा कलर विजन, यहाँ पे कोन्स के लिए कोन्स जो है कलर विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। एंड फंक्शन बेस्ट इन ब्राइटर लाइट कंडीशन। तो ब्राइटर जो लाइट कंडीशन होती है उनमें जो बेसिकली कोन्स का रोल होता है, और जो नाइट विजन है अंधेरे में रोड्स ज़्यादा फंक्शन करते हैं। इसलिए एनिमल्स में रोड्स की जो जो सेल्स हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं एज कम्पेयर टू ह्यूमन्स। क्वेश्चन 18 पे अगर हम आए तो आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक साइट वेयर मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म्स टेक्स प्लेस। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्वेश्चन है। तो ऐसा कौन सा स्पेसिफिक साइट है जहाँ पे स्पर्म्स की मैच्योरेशन होती है एज वेल एज स्टोरेज होती है। ऑप्शन ए इज स्पर्मेटिक कॉर्ड, ऑप्शन बी इज एपिडाइडमिस, ऑप्शन सी इज टेस्टिस, और ऑप्शन डी इज वास डिफरेंस। में से कौन सा करेक्ट जो ऑप्शन है। तो स्पर्म की मैच्योरेशन एंड स्टोरेज कहाँ होती है, मैच्योरेशन बेसिकली यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो आंसर राइट ऑप्शन की बात करें तो आंसर बी दैट इज एपिडाइडमिस। तो एपिडाइडमिस क्या है कि एपिडाइडमिस डायरेक्टली जो कनेक्ट करता है हमारे सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स को वास डिफरेंस के साथ। वास डिफरेंस क्या है कि जो हमारे जो पाइप है जो डायरेक्टली हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम से कनेक्ट करती है। ठीक है, तो एपिडाइडमिस में ही मैच्योरेशन होती है एज वेल एज द स्टोरेज होती है। हमारे जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से जो भी स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, स्पर्म्स इनिशियल जो इमेच्योर स्पर्म्स बन के आते हैं वो एपिडाइडमिस में जाकर स्टोर होते हैं, वहीं पे उनकी मैच्योरेशन भी होती है। ठीक है, बाद में ड्यूरिंग इजैकुलेशन प्रोसेस तो वास डिफरेंस इज द पाइप वेयर इजैकुलेशन अकर्स। वहाँ से एपिडाइडमिस से जो स्पर्म सेल्स हैं वो वहाँ से रिलीज होते हैं, वो थ्रू सीमन वो डायरेक्टली रिलीज होते हैं फ्रॉम टेस्टिस, फ्रॉम जो हमारा पेनिस एरिया है वहाँ से। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो आइडेंटिफाई द हार्मोन दैट स्टिमुलेट्स स्पर्म प्रोडक्शन इन द टेस्टिस एंड ओव्यूलेशन इन फीमेल्स। तो इस पे हम प्रीवियस जो क्वेश्चंस में हमने डिस्कस किया था कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जो स्पर्म प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है एज वेल एज स्पर्म प्रोडक्शन मेल्स में जो होती है और टेस्टिस के अंदर जो होती है उसको स्टिमुलेट करता है, और ओव्यूलेशन की जो प्रोसेस होती है फीमेल्स में उसको स्टिमुलेट करता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है यहाँ पे प्रोलैक्टिन, ऑप्शन बी इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ऑप्शन सी इज फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऑप्शन डी इज एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। तो प्रोलैक्टिन का यहाँ पे रोल ही नहीं है, क्योंकि प्रोलैक्टिन का रोल मेनली जो लैक्टेशन है, जो मिल्क फीडिंग है उसके अंदर इसका रोल होता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हम देख चुके हैं कि मेल्स में टेस्टोस्टेरोन रिलीज करवाता है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन रिलीज करवाता है। एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक जो ACTH हार्मोन है इसका फर्दर मेटाबॉलिज्म में रोल होता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। तो ऑप्शन सी जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है दैट इज FSH, ये हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस भी करवाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस एज वेल एज ओवुलेशन की प्रोसेस, मतलब जो ओवम है ओवम की मैच्योरेशन भी करवाता है। ओवम और एग जो बन के आता है फीमेल्स के अंदर उसकी मैच्योरेशन भी कराता है। ठीक है, मैच्योरेशन। सो FSH का ये रोल है, द राइट ऑप्शन इज FSH। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। तो विच ऑफ द इनएक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर इज एक्टिवेटेड बाय विटामिन K कोएंजाइम।
ठीक है, इनमें से कौन से विच ऑफ द इनएक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर्स, इनमें से कौन से इनएक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर हैं जो विटामिन के की प्रेजेंस में एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, और अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं कोएगुलेशन में, ब्लड कोएगुलेशन में। ठीक है, तो ऑप्शन ए जिसमें आ जाता है क्लॉटिंग फैक्टर सेकेंड, फिफ्थ, नाइन्थ एंड टेंथ। ऑप्शन बी इज क्लॉटिंग फैक्टर सेकेंड, सेवन्थ, नाइन्थ एंड टेंथ। ऑप्शन सी में क्लॉटिंग फैक्टर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ऑप्शन डी में क्लॉटिंग फैक्टर सेकेंड, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन्थ। तो इसका हम एक निमोनिक भी पढ़ चुके हैं एचईपी के अंदर, विटामिन के, विराट कोहली वाला निमोनिक था, वो भी देखेंगे हम एक्सप्लेनेशन में। तो राइट ऑप्शन इज आंसर बी। ऑप्शन जो बी है, यानी कि क्लॉटिंग फैक्टर सेकेंड, सेवन्थ, नाइन्थ एंड टेंथ जो है, ये विटामिन के इनको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है, तो फिर ये जाके अपना रोल प्ले करते हैं ब्लड कोएगुलेशन थ्रू इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे। तो ये है एक्सप्लेनेशन में विटामिन के इज एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ फैक्टर्स सेकेंड, सेवन्थ, नाइन्थ एंड टेंथ। तो इसका मेमोनिक जो है हमारे पास, विराट कोहली ने 4 ओवर में 2, 7, 9 और 10 रन बनाए। ठीक है, विराट कोहली से मतलब वी आई से जो है हमारा विटामिन हो गया और के से विटामिन के हो गया। ठीक है, तो 4 ओवर है, यानी कि 4 जो फैक्टर्स हैं कौन कौन से हैं, 2, 7, 9 और 10। ठीक है, तो विराट कोहली ने 4 ओवर में 2, 7, 9 और 10 रन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। तो वॉल्यूम ऑफ ब्लड फ्लोज पर यूनिट टाइम। तो जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड है वो पर यूनिट टाइम फ्लो करता है किसी भी टिश्यू के ऊपर से, बिकॉज वहाँ पे उसको न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड कराना है, ऑक्सीजन भी प्रोवाइड कराना है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ ब्लड फ्लोज पर यूनिट टाइम, वॉल्यूम ऑफ द टिश्यू इज नोन एज, इस टर्म को हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए इज रेजिडेंस टाइम, ऑप्शन बी इज गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम या रेट, ऑप्शन सी इज परफ्यूजन रेट, ऑप्शन डी इज एलिमिनेशन रेट। तो रेजिडेंस टाइम मतलब ठहराव, कि वहाँ पे कितनी देर तक रुक रहा है, बट इट डज नॉट कोरिलेट्स विद द वॉल्यूम ऑफ ब्लड फ्लो के साथ इसका कोई कोरिलेशन नहीं है। गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम जो रेट है, ये भी इसके साथ कोई इसका कोरिलेशन नहीं है, बिकॉज वहाँ पे गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम में वहाँ पे ब्लड फ्लो का कोई कोरिलेशन नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो गैस्ट्रिक जो फूड कंटेंट है वो एम्प्टिंग होता है। ठीक है, फिर आ जाता है परफ्यूजन रेट एंड एलिमिनेशन रेट। तो एलिमिनेशन रेट इज समहाउ रिलेटेड टू द एक्सटेंट ऑफ सब्सटेंसेस एलिमिनेटिंग आउट फ्रॉम द ब्लड प्लाज्मा। ठीक है, जो हाफ लाइफ जिसको बोलते हैं, जो हाफ लाइफ के साथ कनेक्टेड है। तो ऑप्शन सी है वहाँ पे परफ्यूजन रेट, तो इट इज़ द करेक्ट आंसर, परफ्यूजन रेट। तो जो परफ्यूजन रेट, बेसिकली परफ्यूजन इज व्हाट, परफ्यूजन इज कि किसी भी पर्टिकुलर सेल्स को या टिश्यू को परफ्यूज करना, कि उनको ब्लड सप्लाई करना। ठीक है, और कितना अमाउंट ऑफ ब्लड सप्लाई हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड द परफ्यूजन रेट। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ ब्लड फ्लोज पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम के हिसाब से कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो है वो फ्लो कर रहा है टिश्यू के ऊपर से। ठीक है, उसको हम बोल रहे हैं परफ्यूजन। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। तो कार्डियक आउटपुट इज, इनमें से कार्डियक आउटपुट कौन सा ऑप्शन को शो करता है। तो ऑप्शन ए इज वॉल्यूम ऑफ द ब्लड इजेक्टेड बाय द ऑरिकल पर मिनट, वॉल्यूम ऑफ द ब्लड इजेक्टेड बाय द ऑरिकल पर बीट, वॉल्यूम ऑफ द ब्लड इजेक्टेड बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल पर मिनट एंड वॉल्यूम ऑफ द ब्लड इजेक्टेड बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल पर मिनट। ठीक है, पर बीट। तो इनमें से राइट जो आंसर है वो है हमारा आंसर सी। तो वॉल्यूम ऑफ द ब्लड इजेक्टेड बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल, तो एक बार में लेफ्ट वेंट्रिकल से कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड इजेक्ट आउट हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो कार्डियक आउटपुट उसी पर डिपेंड करता है, वॉल्यूम ऑफ द ब्लड इजेक्टेड बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल पर मिनट। ठीक है, तो कितना वॉल्यूम लेफ्ट वेंट्रिकल से इजेक्ट हो रहा है उसको बोलते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन, और जब वही पर मिनट के हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं तो उसको बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर कॉल्ड स्कैवेंजर सेल्स। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ये इम्यून सेल्स का पार्ट होते हैं स्कैवेंजर सेल्स, और ये जो एंटीजेंस होते हैं बेसिकली लाइक फॉरेन एजेंट्स हो गए, बैक्टीरियाज एंड
अदर जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं उनको इंगल्फ करते हैं, स्कवेंज करते हैं, पकड़ के उनको डिस्ट्रॉय करते हैं या न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। तो इसमें ऑप्शंस है, ऑप्शन ए मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स, नेचुरल किलर सेल्स या मास्ट सेल। मास्ट सेल जो है, मास्ट सेल बेसिकली हिस्टामिन रिलीज करवाते हैं, तो इसका कोई रिलेशन नहीं है स्कैवेंजर सेल्स के अंदर। ठीक है, नेचुरल किलर सेल्स जो एनके सेल्स होते हैं, इनका काम होता है इम्यून सेल्स में, न्यूट्रोफिल्स एज वेल एज मैक्रोफेज। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे है हमारा मैक्रोफेजेस, क्योंकि हम मैक्रोफेजेस को ही हम नेचुरल स्कैवेंजर सेल्स के नाम से जानते हैं। तो राइट ऑप्शन इज मैक्रोफेजेस। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। तो विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट द कैल्सीट्रायोल। कैल्सीट्रायोल जो हम पहले देख चुके हैं 125 OH2D3, जो इसका केमिकल फॉर्मूला था कैल्सीट्रायोल का। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कैल्सीट्रायोल के रिगार्डिंग ट्रू नहीं है, रॉन्ग स्टेटमेंट है? ऑप्शन ए इज इनहेंसेस एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट फ्रॉम इंटेस्टाइन। Option B is it prevents tubular reabsorption of calcium and phosphate. Option C is it is active form of vitamin D3. And option D is it enhances reabsorption of calcium and phosphate from bones. तो इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन हो सकता है? आंसर देखिए तो ऑप्शन डी जो है हमारा, इट enhances द reabsorption of calcium and phosphate from bones. तो कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन एंड फॉस्फेट की रीअब्जॉर्प्शन कराता है ये बोन्स के थ्रू। तो राइट आंसर इज आंसर डी। तो एक्सप्लेनेशन की बात करें तो इनहेंसेस एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट फ्रॉम इंटेस्टाइन, ये ट्रू ऑप्शन है हमारा। तो कैल्सीट्रायोल प्लेज अ क्रूशियल रोल इन इनहेंसिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट फ्रॉम इंटेस्टाइन which is essential for maintaining proper levels of these minerals in the body, and it prevents tubular reabsorption of calcium and phosphate. तो ये जो सेकंड इसका ऑप्शन है ये दिस इज़ नॉट ट्रू, इसलिए जो सेकंड ऑप्शन हाँ इट इनहेंसेस रीअब्जॉर्प्शन, क्योंकि ये इनहेंस नहीं करवाता रीअब्जॉर्प्शन को कैल्शियम एंड फॉस्फेट, ठीक है, बोन्स के थ्रू। तो इसलिए हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, कैल्सीट्रायोल एक्चुअली प्रमोट्स the tubular reabsorption of calcium and phosphate in the kidney. It helps to prevent excessive loss of these minerals in the urine. जो थर्ड फंक्शन है, इट इज़ द एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन D3, ये ट्रू है हमारा। इट इज़ द एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन D3। कैल्सीट्रायोल इज इंडीड द एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन D3 विच इज़ प्रोड्यूस्ड इन द किडनी, जो हमने पहले के क्वेश्चन में देखा था, फ्रॉम इट्स प्रिकर्सर विटामिन D3 कॉलिक कैल्सीफ्रॉल। ठीक है, थ्रू अ सीरीज ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। तो फोर्थ ऑप्शन है, जो फोर्थ पॉइंट है, इट इनहेंसेस रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट फ्रॉम बोन्स। ठीक है, तो कैल्सीट्रायोल स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट फ्रॉम बोन्स टिश्यू इन द ब्लड स्ट्रीम। तो लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि व्हाट आर सूचर्स। तो ये हमारा स्केलेटल सिस्टम का पार्ट है, बोन से रिलेटेड है सूचर्स। तो अगर आपने स्केलेटल सिस्टम पढ़ा होगा तो सूचर्स के बारे में, तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि साइनोवियल जॉइंट, कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स, फाइब्रस जॉइंट्स ऑफ द स्कल एंड नॉन फाइब्रस जॉइंट्स। तो जो साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं वो साइनोवियल जो हमारे साइनोवियल जो कैविटी है उनको एक साथ कंबाइन करते हैं। ठीक है, जो हमारे लेग्स में प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पटेला के जस्ट नीचे, जो पटेला बोन होती है उसके जस्ट नीचे होता है हमारा साइनोवियल जॉइंट। कार्टिलेजिनियस जो जॉइंट्स होती हैं, वो कार्टिलेजिनियस जॉइंट जो होती है वो जॉइन करते हैं हमारे मसल्स को हमारे बोन्स के साथ। ठीक है, और जो नॉन फाइब्रस जॉइंट होती है, नॉन फाइब्रस जॉइंट मेनली जो सॉलिड जो फिक्स्ड सॉलिड जो बोन जॉइंट्स होती है उनको बोलते हैं नॉन फाइब्रस, जहाँ पे फाइब्रस मटेरियल प्रेजेंट नहीं होता। तो सूचर्स आर, सी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है, जो फाइब्रस जॉइंट्स होते हैं ऑफ द स्कल, क्योंकि यहाँ पे फाइब्रस लाइक अगर हम हेड की बात करें, दिस इज हेड, तो इनके बीच में जो लोब्स प्रेजेंट होते हैं ना इस टाइप से, लाइक ये जो हमारा हो गया टेम्पोरल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, ठीक है, फ्रंटल लोब और ये पैराइटल लोब, ये हो गए। तो इनके बीच में जो ये सेगमेंट प्रेजेंट है ना, ये जो मैं रेड से शो कर रहा हूँ, इनको बोलते हैं हम सूचर। तो ये फाइब्रस जो जॉइंट्स होते हैं स्कल्स के अंदर, जो हर एक लोब को एक दूसरे के साथ जॉइन करके रखते हैं, कनेक्ट करके रखते हैं। ठीक है,
जो हर लोग को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके रखते हैं उनको हम बोलते हैं सूचर्स. सूचर्स. Okay. So right answer is option C, that is fibrous joints of the skull. So यहाँ पे हमारे ख़त्म होते हैं आज के PYQ क्वेश्चन 25 क्वेश्चन ऑफ पार्टनर और subject is HAP, human anatomy and physiology, and we will come further with another 25 questions of PYQ. Thank you so much for watching our video, and if you have not subscribed to our channel, then please subscribe and do share with your friends. Thank you so much.